from Class 8 Math NCERT CBSE book. Now we have to complete the question number 3rd of exercise 14.3. Okay, what is the question? Our first question is 10x minus 25 divided by 5. So we can write this thing as a P by Q form. Okay, so 10x minus 25 will be as a numerator and 5 will be as a denominator. Now we will factorize each term. Okay, so our value for 10x will be 2 into 5 into x. Okay, and our value for 25, it will be 5 into 5. Okay, and in the denominator there is 5 will be as usual. Okay, now first we try to take out the common factor. Okay, so here if we see that 2 is here but 2 is not here, 5 is here and also 5 is here. For the x is here, x is not here. So we can take out only 5 from both terms. Okay, if we will take out 5 from both terms, then 2 into x will left here. Okay, 2 into x will left here and minus sign will be in his own place, and here since we have taken out 5, so 5 will be left here. Okay, now in the denominator there will be only 5 because we cannot factorize the 5. Okay, so our value become 2 and 2x minus 5. Okay, by 5. Okay, now 2x minus 5 is the factor and also 5 is the factor. Okay, here there's 2 factor. Okay, first is 5 and second is 2x minus 5. So we can divide the factor with the factor. Okay, or numerator factor with the denominator factor, and in the denominator there's only 5, so 5 1 ja 5 and 5 1 ja 5. So our answer will be 2x minus 5. Okay, now we cannot further simplify 2x minus 5 because it has 2 terms, and for the 2 terms we can use only anti-number third, and for anti-number third we need both terms of perfect square, and 2x is not the perfect square, also 5 is not the perfect square, so we can not further simplify this expression, and this will be our answer. Okay, now our second question is 10x minus 25 divided by 2x minus 5. That means this will be our numerator and this will be our denominator, because this all term or this all factor, this is the factor. Okay, because it is divided or if there is the expression is with multiply or is with divide, then we can say it this is the one term only. Okay, so it is only one term. Okay, and these two things is the factor. Okay, these two things is as a factor. Okay, so this we can write it as a 10x minus 25, and this we can write it as a 2x minus 5 in the denominator. Okay, this will become the numerator and this will become the numerator. Okay, now how we will divide this numerator by this denominator? First we will make the, or we will factorize the numerator
and factorize also the denominator, and then we can divide the factors with the factors only. Okay, so here we can factorize the first term. Its value will be 2 into 5 into x. Okay, and for the 25 our value will be 5 into 5. Okay, and in the denominator our value will be 2 into x minus 5. Okay, now first we will check for the common factor. Okay, 2 is here, 2 is not here, 5 is here, 5 is also here, x is here, x is not here. So we can take out only 5 from both terms. Okay, in the numerator. So we take out 5. Okay, now the value will left here 2 into x, and here value will left only 5. Okay, and in the denominator our value is 2 into x. Okay, minus 5. Okay, now our value become 5 and 2x minus 5. Okay, in the denominator we cannot simplify this 2x minus 5 because here there is no common factor, so we can directly write it as a 2x minus 5. Okay, now in the numerator 5 and 2x minus 5, this 5 and this 2x minus 5 is the factor. Okay, this 5 is first factor and 2x minus 5 is second factor. Okay, and in the denominator there is only one factor, 2x minus 5. Okay, if we will यदि हम पूरे के पूरे टर्म्स को, पूरे एक्सप्रेशन को, चाहे वो कितने भी टर्म्स के एक्सप्रेशन हो, ठीक है, कितने भी टर्म्स के एक्सप्रेशन हो, यदि हम चाहें तो उसको एक फैक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर के रूप में यूज करने के लिए सिर्फ हमने ब्रैकेट लगा दिया और इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में है ना। भले यहाँ पे 2 फैक्टर है, 2x माइनस 5 है, ठीक है, सिर्फ मैंने ऊपर से एक ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि है तो एक ही टर्म्स है, तो एक ही एक्सप्रेशन और 2 टर्म वाला एक एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन उसको हमने किस तरह से दिखाया कि एक के साथ ये मल्टीप्लाई में, मतलब ये इसमें एक 1 जो है वो पहला फैक्टर है और दूसरा फैक्टर 2x माइनस 5 है, ठीक है। पूरे के पूरे टर्म्स को, चाहे वो 10 नंबर्स ऑफ टर्म्स क्यों ना हो, पूरे के पूरे 10 नंबर ऑफ टर्म्स को यदि हम चाहे तो एक टर्म के रूप में यूज हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। उसको 2 टर्म में नहीं बना सकते, 3 टर्म में कभी नहीं बना, सॉरी 2 फैक्टर में नहीं बना सकते, 3 फैक्टर में हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 फैक्टर में बनाने के लिए 2 फैक्टर में बना सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरे किसी भी फैक्टर ग्रुप में इसको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें कोई भी मेथड लागू होता ही नहीं है। कॉमन फैक्टर मेथड लागू नहीं हो रहा है, रीग्रुपिंग इसमें लागू नहीं हो रहा है, कोई आइडेंटिटी इसमें यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। जब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो ये पूरे के पूरे वैल्यू, होल वैल्यू को हम एक टर्म, एक फैक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, ताकि इसी फैक्टर को ऊपर वाले फैक्टर के साथ और न्यूमरेटर के फैक्टर के साथ सीधा सीधा हम डिवाइड कर सके। ओके, तो यहां पे 2x माइनस 5 है, यहां भी 2x माइनस 5 है, और 2x माइनस 5 यहां का फैक्टर है और यहां का फैक्टर भी 2x माइनस 5 है। यहां का फैक्टर 2x माइनस 5 क्यों हुआ? क्योंकि पूरे को हमने एक के रूप में ले लिया और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। ओके, तो ये पूरा एक फैक्टर और इस फैक्टर के साथ हो गया कैंसिल। 2x माइनस 5 2x माइनस 5 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहां वैल्यू हमारा क्या बच गया? 5 विल बी आवर आंसर। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 10y 6y प्लस 21 और 5 2y प्लस 7। ओके, तो इसमें क्या दिख रहा है? इसमें इस तरह से दिख रहा है, ये पूरे के पूरे जो टर्म्स हैं, ये पूरे के पूरे जो हैं वो एक फैक्टर है और ये जो है दूसरा फैक्टर है, और दोनों फैक्टर जो है डिवाइड से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों के बीच में डिवाइड है।
ठीक है, दो फैक्टर है, इसको टर्म्स तो बोल नहीं सकते क्योंकि टर्म्स के लिए हमारा प्लस या माइनस होना जरूरी है, ठीक है, तो टर्म्स तो नहीं बोल सकते, तो ये फैक्टर है, दो फैक्टर हैं, ठीक है, जो कि बीच में डिवाइड से लगा हुआ है, दोनों को हमको डिवाइड करने का है, ठीक है। तो पहला जो है ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10y 6y प्लस 21, ठीक है, और 5 2y प्लस 7। ओके, ये हो गया। अब यदि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को यानी न्यूमरेटर का जो भी एक्सप्रेशन है या न्यूमरेटर का जो भी वैल्यू है उसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की भी वैल्यू को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर निकाला हुआ है 10y, यदि बाहर रखा हुआ है इसका मतलब कॉमन फैक्टर निकाला हुआ, आधा काम इसने कर दिया है, मतलब थोड़ा कॉमन फैक्टर निकाल दिया। फिर भी अभी हमको कॉमन फैक्टर के बारे में एक बार चेक करना है कि और कोई कॉमन फैक्टर निकल सकता है क्या। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2 इंटू 5 इंटू वाई, 10y को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 5 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर के हम देखते हैं तो क्या होता है, 6y है तो 2 इंटू 3 इंटू वाई होगा वैल्यू, प्लस 21 का 3 इंटू 7 होगा। ओके, ठीक है। और यदि हम नीचे वाला वैल्यू देखते हैं तो क्या हो जाएगा 5, ओके, और 2 इंटू वाई और प्लस 7। ओके, सभी के लिए चेक कर देंगे। यदि हम न्यूमरेटर के लिए चेक कर रहे हैं तो एक बार डिनोमिनेटर के लिए भी चेक कर लेते हैं कि और फैक्टराइज हो सकता है क्या वो, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि 3 जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो 3 हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू वाई इंटू 3। ओके, 3 बाहर निकल जाएगा, सबके मल्टीप्लाई के साथ में आ जाएगा, और अंदर में क्या बच जाएगा, 2 इंटू वाई बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 बन जाएगा। देख लीजिए नीचे वाला जो है उसमें भी एक फैक्टर जो है वो 2 इंटू वाई और प्लस 7 है। ओके, तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को हटा देंगे और देखिए 2 इंटू 5 इंटू वाई इंटू 3, ओके, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2y प्लस 7, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट को हटा दिया, ठीक है, सीधा लिख दिया, क्योंकि अब ब्रैकेट का और सिंप्लीफाई कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सीधा ब्रैकेट हमने हटा दिया, और नीचे क्या है 5 और ये हो गया 2y प्लस 7। ओके, तो 5 के साथ ये फैक्टर, ये 2 फैक्टर है, और ऊपर में वो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 और ये 5 नंबर्स ऑफ फैक्टर है। ओके, तो 5 विल कैंसिल विथ 5 एंड 2y प्लस 7 विल कैंसिल विथ दिस फैक्टर, दिस 2y प्लस 7। ओके, सो आवर वैल्यू विल कम 2 इंटू y इंटू 3, दैट मीन्स 6y विल बी आवर आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हुआ, ये दोनों जो है आपस में डिवाइड में है, तो सीधा हम इसको डिवाइड में डाल देते हैं, ठीक है। ये 3z माइनस 24, ठीक है, डिवाइड बाय 27 xy z माइनस 8। ओके, अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ओके, इसका वैल्यू हो जाएगा, और अंदर में हो जाएगा 3 इंटू जेड माइनस फॉर 24 और वैल्यू विल बी 2, 12 जा 2, 6 जा एंड 2 3 जा। ओके, ये हमारा वैल्यू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। एंड इन द डिनोमिनेटर और वैल्यू विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू एक्स इंटू वाई, और इन द ब्रैकेट वैल्यू इज z माइनस 8। ओके, फ्रॉम
z minus 8, we cannot take any common factor because z is here but z is not here. So I have leave it as usual. Okay. Here we check that 3 is common in both term. Okay. So again we will take out 3 from both term and we will write it with the multiply with this all factors. Okay, so 3 we have taken out. Now here z will remain here and here 2 2 ja 4, 4 2 ja 8 will remain here. Okay, and in the denominator our value is 3 into 3 into 3 into x into y. Okay, and z minus 8. Okay, so z minus 8 and z will cancel with z minus 8 because here z minus 8 is the factor of denominator, and here z minus 8 is also the factor in the numerator. Okay, and 3 will cancel with 3, this 3 will cancel with 3, this 3 will cancel with this 3, this x will cancel with this x, and this y will cancel with this y. Now our value will be x square, 2 number of x is here, so x square y. So x square y will be our answer. Okay. Here we have make one mistake. I have written 3 times x and here is only 2 times x, and x is here. Okay, x and x is here. So I remove this x. Okay, I remove this x. Now our value become x into y only. Okay, our value will be x into y, not x square into y. So xy will be our answer. Okay. Now our last question is 96 ABC, 3a minus 12, 5b minus 30 divided by 144, a minus 4 and b minus 6. Okay. So first of all we will write it as a p by q form. Okay. So the value become 5b minus 30 by 144, a minus 4 and a minus 6. Okay. Now we will factorize all things. Okay. For the 96 ABC our value will be 2 into 248, 224, 212, 26, 23, 3 2 ja 6, 2 ja 12, 2 ja 24, 24, 48, 96. Okay, into A into B into C. Okay, and 3A, for 3A we can write it 3 into A. Okay, for 12 our value will be 2 into 2 6 ja 2 3 ja 3, 2 2 into 3. Okay, and for this thing our value will be 5 into B and minus 30 means 2 15 ja 3 5 ja 5. Okay, it is the, that means I have factorized the each term or each things. Okay, here we cannot tell it as a term because whole thing is the one term. Okay, so we factorize all things. Okay, now for 144 our value will be 272, 236, 218, 29, 3 into 3, 3 3 ja 9, 9 2 ja 18, 18, 36, 30, 72, 144. Okay, and a minus 2 into 2. Okay, and for a minus 6 value will be a minus 2 into 3. Okay, now we will check for the common factor.
Okay, first of all we check the common factor. So here we can take out 3 from both terms. Okay, also here we can take out 5 from both terms. Okay, so our value will be 2 into 2 into 2 into 2 into 5 times 2 is here into 3 into A into B into C. Okay, okay, and we have taken out 3 from this both term, so 3 we have taken out. Okay, and rest A will left here minus 2 into 2 will left here. Okay, now we close this all bracket. Okay, I have written this as a separate factor. Okay, now for this thing, because it have 2 number of factor with 2 terms, that's why I've done these things. Okay, for the second, 5 we can take out, so 5 we have taken out. Now B will left here minus 2 into 3 will left here. Okay, and we have closed bracket. Okay, by 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Okay, here we cannot take any common factor, so again I have written it as a minus 4, and here also we cannot take out any common factor, so again for these things I have written again it a minus 6. Okay, we will simplify only numerator value. Okay, now this here, this is one factor and this is the second factor. Okay, and here also this B minus 2 6 here, 2 into 3 is one factor and 5 is the another factor. So if we will remove this bracket, 3 directly come in multiply with this all things, and this 5 also will come directly with the multiply with these factors. Okay, so our value become 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into A into B into C into these 3 come. Okay, we remove this bracket, then 3 will come, and here also 5 will come, because this is the multiply, because this is the 2 factor. Here if you will see, 3 and these things is 2 factor, and 5 and these things have also 2 factor. Okay, so these all are factors, so directly we will write it as a all as a in one place. Okay, so 3 we have taken as a multiply, and 5 also we will take as a multiply value, and our value become a minus 4, and here our value become b minus 6. ओके, ये हमारा क्या बच जाएगा, a माइनस 4 बच जाएगा, यहाँ b माइनस 6 बच जाएगा. 3 को हमने निकाल के मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई में रख दिया. ये 5 भी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में मैंने डाल दिया. ठीक है, और नीचे जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, और यहाँ a माइनस 4 है, और यहाँ a माइनस 6 है. और आपको मालूम है कि ये क्या है, 4th का क्वेश्चन, 3rd का क्वेश्चन b माइनस 6. ओके, जो नीचे में है a माइनस 4 और b माइनस 6 है, सॉरी ये b है. ओके, b माइनस 6 ये b है. ओके, ये b है. ओके, ये b है, और यहाँ b तो मैंने लिखा ही है. ठीक है, तो b माइनस 6 और b माइनस 6 ये दोनों एक फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर से सीधा डिवाइड हो सकता है. ठीक है, ये सारे फैक्टर सारे मल्टीप्लाई में है. ठीक है, a माइनस 4 से डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है. ठीक है,
2 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 2 से डिवाइड हो गया, 3 जो है ये 3 से डिवाइड हो गया, और अगेन ये 3 जो है ये 3 से डिवाइड हो गया। यहाँ एक चीज देखने वाला बात है कि यहाँ a-4 को मैंने a-4 से डिवाइड कर दिया। इस a-4 को मैं आगे और सिंप्लीफाई नहीं किया, वैसे ये सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, किसी फॉर्मूला पे ये बैठेगा, किसी मेथड पे ये बैठेगा ही नहीं। लेकिन यदि सिंप्लीफाई हो भी सकता है, ठीक है, यदि ये सिंप्लीफाई हो भी सकता है तो भी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऊपर का नीचे से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद सभी का सभी इस नीचे वाले के साथ सिंप्लीफाई डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो और सिंप्लीफाई करने की जरूरत क्या है? जब नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के फैक्टर के साथ डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू चाहे जैसा भी हो डायरेक्ट आपको कैंसिल कर ही देना है। यदि वो और सिंप्लीफाई हो सकता है, किसी फॉर्मूला में आके और फैक्टराइज हो सकता है, तो भी फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे a बचा, यहाँ b बचा, यहाँ c बचा और 5 बचा। ठीक है, इतना ही बचा, यानी 2 5 जा 10 और abc 10 abc जो है हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यदि आपको कहीं भी ऐसा लगे कि यहां और सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है, तो आप जिस भी मेथड पे यूज करें, क्योंकि मेथड्स को मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है। 2 टर्म्स में कौन सा मेथड लगेगा, 3 में कौन सा लगेगा, 4 टर्म होगा तो कौन सा लगेगा, तो वो आपको मालूम है। उस हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि कॉमन फैक्टर, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो हम निकाल ही रहे हैं, कॉमन फैक्टर तो हम पहले निकालते ही हैं, तो कॉमन फैक्टर तो हम चेक करेंगे। रीग्रुपिंग अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूं, लेकिन रीग्रुपिंग के लिए 4 टर्म्स होना चाहिए, जो कि यदि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे 4 टर्म्स है और रीग्रुपिंग हम यूज कर सकते हैं, तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस में उसका यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटीज का भी यूज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जहां जो हो रहा है वहां मैं कर ही देता हूं। लेकिन यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट ऑर्डर, इसमें क्या होगा कि आपको खुद को फायदा होगा कि आइडेंटिटी 1 हमने अप्लाई क्यों नहीं किया, वो एक बार सोचने का। आइडेंटिटी नंबर 2 हमने अप्लाई क्यों नहीं किया, यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं किया, ये सारा चीज एक बार देखने का, आपको खुद को सोचने का। उससे आपको क्या होगा कि आपको और समझ में आएगा कि हम कितना इजी बना सकते, क्योंकि सारे मेथड में आपको बता चुका हूं कि पहला आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, बाद में क्या करना है, 4 टर्म हो तो रीग्रुपिंग को चेक करना है, उसके बाद क्या करना है हमको कि सारे आइडेंटिटी चेक करना है। यदि 3 टर्म्स हो तो आइडेंटिटी नंबर 1st, 2nd और 4th चेक करना है अलग अलग से। ठीक है, पहले 1st चेक कर लेना है, ओके है तो ठीक है, नहीं तो 2nd चेक करना है, ओके ठीक है, नहीं तो आइडेंटिटी नंबर 4 चेक कर लेना है। ठीक है, यदि 2 टर्म है तो आपको इजीली आइडेंटिटी नंबर 3 यूज कर लेना है। ठीक है, और यदि 4 टर्म है तो आपको रीग्रुपिंग यूज करना है, या एक साथ आइडेंटिटी नंबर 1st और 3rd या आइडेंटिटी नंबर 2nd और 3rd यूज करना। यदि ये सब नहीं हो पाता है, तो यदि कहीं एक्सपांड होने का है कि एक्सपांड हो सकता है, वो इक्वेशन एक्सपांड हो सकता है, तो पहले आप एक्सपांड कीजिए, बाद में उसको सिंप्लीफाई कीजिए, बाद में बनाइए, फिर अगेन आप शुरू से पूरा ट्राई कीजिए कौन फैक्टर निकलता है कि नहीं, रीग्रुपिंग होता है कि नहीं, आइडेंटिटीज यूज होता है कि नहीं होता है, ऐसा। ठीक है, समझ गए होंगे अभी आप।